संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम। आ रहे हैं हम वंदे भारतम, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम। क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047
हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया गया। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground. And then the grand finale, where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on a motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sahnaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में
और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. जैसे आसमान में फाइटर पायलट्स जैसा कोई नहीं, वैसे ही टेस्ट में गोल्डी वर्मा नूडल्स जैसा कोई नहीं। Celebrate the undying spirit of our real heroes with our film Fighter in cinemas near you from 25th Jan. श्री बालाजी टाउनशिप, जनता रोड, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, जिला सहारनपुर। जनता रोड पर पहली अप्रूव्ड कॉलोनी, ऑटोमेटिक बूथ बैरियर सुविधा, हरे भरे पेड़ों की सुविधा। कॉलोनी में बिजली पानी की सुविधा, 30 से 40 फीट सड़कें, 16 स्ट्रीट लाइट की सुविधा, 24 घंटे सिक्योरिटी की सुविधा, 10 बड़े पार्क एवं जिम की सुविधा के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। फाइटर स्पिरिट इज अनब्रेकेबल क्योंकि वो तब तक लड़ता है जब तक दुश्मन घुटने न टेक दे। अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दो डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल का साथ, जो दे दर्द से पूरी आजादी फॉर अ बेटर लाइफ। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फाइटर इन सिनेमास फ्रॉम 25th of January। अब पाइए बिस्किट्स और चॉकलेट्स पर मिनिमम 33% ऑफ। आ गया स्मार्ट बाजार फुल पैसा वसूल सेल 24 से 28 जनवरी। स्मार्ट बाजार चलिए। Excuse me, could you please tell me if this is a dangerous neighborhood? I cannot pay for the ride. Great! With battery, you're always delighted. नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामन दर्द निवारक क्रीम और तेल। पाइए 5 किलो बासमती राइस और 3 लीटर ऑयल का कॉम्बो सिर्फ 699 रुपीज में। आ गया स्मार्ट बाजार फुल पैसा वसूल से 24 से 28 जनवरी। स्मार्ट बाजार चलिए। उड़े देश का आम आदमी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन
जब नीयत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। उत्सव और त्योहार मनाएं, झूमे नाचे सब नर नारी। सबका नवजीवन मिल जाए, अब यूपी की बात निराली। मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी ने कहा जो करके दिया दिखाए। साफ मिला पानी तो भैया रोग दो से अब पास ना आए, रोग दो से अब पास ना आए। हर घर जल से, हर घर नल से, गांव गांव खुशियां मुस्कान। घर घर में पानी की धारा झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। रोजगार के खुल गए द्वार, फसल हंसे फैली हरियाली, जल से कल को दिया सवार। मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी ने कहा जो करके दिया दिखाए। साफ मिला पानी तो भैया रोग दो से अब पास ना आए, रोग दो से अब पास ना आए। हर घर जल से, हर घर नल से, गांव गांव खुशियां मुस्कान। घर घर में पानी की धारा झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। देश में इस वर्ष बिजली की अधिकतम खपत 28,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई थी। आने वाली गर्मी में करीब 30,000 मेगावाट तक अधिकतम बिजली खर्च हो सकती है। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। अनुपूरक बजट में भी इसकी झलक दिखाई पड़ रही है। प्रदेश सरकार ने वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के बजट का भी प्रावधान किया है। प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए, नगरीय क्षेत्रों नोएडा और मऊ में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 1028.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोटी रोजगार के साथ गरीब तबके के लोगों को सिर छुपाने के लिए मकान का भी बंदोबस्त कर रही है। प्रदेश की इन आवास योजनाओं में बिजली पानी का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है। किफायती आवास निर्माण की परियोजनाओं में बाह्य विद्युतीकरण कार्य के लिए 19.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तार से लेकर ट्रांसफार्मर तक के सुधार होंगे।
वितरण प्रणाली सुधरने से उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मिलेगी। प्रदेश की योगी सरकार विभिन्न परियोजनाओं को गति देने में जुटी है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम अंतर्गत हानियों में कमी के लिए अंश पूंजी के रूप में 511 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था। रीमैप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अन्य राज्य और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का सरकार का उद्देश्य है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में फल एवं सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, जिससे प्रदेश से अधिकाधिक निर्यात के उत्पाद तैयार हों और उनका दूसरे देशों में निर्यात किया जा सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन के लिए 5.4 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार कृषि की ओर ध्यान दे रही है। कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्य दर्जे के औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने परियोजना तैयार की है। इस परियोजना से किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है। यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। किसानों की फसल खरीद के बाद तत्काल भुगतान करने के लिए सरकार सभी पैक्स समिति को सीसी अकाउंट से लोन लेने की व्यवस्था रखी है, ताकि समय से किसानों को उनकी फसल की कीमत पैक्स चुकता कर सके। किसानों को सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है। उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सहकारी क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कंप्यूटरीकरण की योजना तैयार की है। इससे सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सहकारी क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रांश के लिए 60 लाख और राज्यांश के लिए 40 लाख अर्थात 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन की योजनाओं के लिए ऋण देने का काम करता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से काफी हद तक किसानों को भी फायदा मिलता है, जिसके कारण प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए गए ऋण के प्रतिदान के लिए 9.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 19वें एशियन गेम्स 2022 और 19वें पैरा एशियन गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिभाग करने वाले एवं पदक विजेता खिलाड़ियों तथा नेशनल गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार के लिए 51 करोड़, माह सितंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप के लिए वांछित धनराशि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को उपलब्ध कराए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था, सैयद मोदी मेमोरियल ऑल इंडिया प्राइज मनी बैडमिंटन कंपटीशन के लिए 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान हेतु कर्ज के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान हेतु कर्ज पेराई सत्र 2022-23 के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान हेतु कर्ज पेराई सत्र 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मिशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने। उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation meaning diamond bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde and Squadron Leader Vijay Chandgure, all from 101 Squadron known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में
3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard riding presidential carriage moving forward to position. The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations.
cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहाँ बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर। राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर
कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister, making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here, a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees. A lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहाँ पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और अनंत सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहाँ पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong.
Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफ़ी बड़ा इलाका है सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर। ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties and power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहाँ दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाज़ा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहाँ मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, अब पाइए 3 बर्नर ग्लास टॉप गैस स्टोव सिर्फ 1999 रुपीज में। आ गया स्मार्ट बाजार फुल पैसा वसूल से 24 से 28 जनवरी। स्मार्ट बाजार चलिए। जैसे आसमान में फाइटर पायलट्स जैसा कोई नहीं, वैसे ही टेस्ट में गोल्डी वर्मा नूडल्स जैसा कोई नहीं। Celebrate the undying spirit of our real heroes with our film Fighter in cinemas near you from 25th Jan. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ
ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की